Hello students. Students, in previous videos we discussed about the acid and base and the chemical properties of acid and base. In this video we will discuss about the salts. The, the simplest definition of salt is salt are produced when acid and base reacts with each other. Students, in previous lecture we also know that from the previous lecture when acid and base metal reacts with metals, they also form salts and hydrogen gas. But the simplest definition is when acid and base react with each other, they form salt. The example are sodium chloride and sodium nitrate. Students, here some examples also is here salts and their derivations. For example, the example is potassium sulfate. The formula is K2SO4 and derived from the base KOH, potassium hydroxide, and acid is sulfuric acid H2SO4. When they react with each other, they form K2SO4. The next example is sodium sulfate. Na2SO4 is the formula of a salt, and the base is NaOH reacts with acid H2SO4. When they react, they form Na2SO4. The next example is NaCl, सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए जो बेस होगा वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द एसिड इज HCl. When they react with each other, they form NaCl. The next example is ammonium chloride, NH4Cl, and NH4OH. Ammonium hydroxide is base and the HCl is acid. When they react with each other, they form NH4Cl. Student, on the basis of these acid and base and the presence of radicals, positive and negative radicals, the salts are divided and grouped in a salt family of salts having same positive and negative radicals are said to belong to a family. तो साल्ट में अगर जो है कोई भी एक जो है पॉजिटिव या जो है नेगेटिव जो है रेडिकल अगर सेम है, कॉमन है, तो उसको साल्ट फैमिली कहा जाता है. फॉर एग्जांपल सोडियम साल्ट्स जो है एक फैमिली है, सोडियम साल्ट फैमिली इसको कहेंगे. द एग्जांपल्स आर NaCl, NaHCO3, Na2SO4, Na2CO3 and NaNO3. In these examples, students, sodium Na is common in all these examples as a positive radical. The next family is chloride salt. In these examples, NaCl, KCl, BaCl2, MgCl2, BaCl, AlCl3, FeCl3. Student, in these examples, chloride is common in all these examples as a negative radicals. Next example is and next family is carbonate salt. The examples are Na2CO3, K2CO3, CaCO3, ZnCO3, FeCO3 and MgCO3, magnesium carbonate. In these examples, students, CO3 means carbonate CO3 minus is common in all these examples of carbonate salts as a negative radical. The next family is potassium salt. The examples are potassium chloride, KHCO3, potassium hydrogen carbonate,
K2SO4 potassium sulfate, KNO3 potassium nitrate, K2CO3 potassium carbonate, and CH3COOK potassium acetate. Student, in these examples, potassium is common as a positive radical. The next family or salt is sulfate salt. The examples are Na2SO4, K2SO4, CaSO4, MgSO4, CuSO4, and FeSO4, ferrous sulfate. In these examples, student, SO4 minus as common as a negative radicals. Students, on the basis of these examples, we can say that salt having same positive and negative radicals are said to belong to a family, and the family is known as salt family. Students, on the basis of basic definition, when acid and base reacts, they form salt. And in previous lecture, we also learnt that salt has a pH 7. साल्ट का pH जो है 7 होता है, लेकिन स्टूडेंट्स दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। क्यों ऐसा? क्योंकि जो है, अगर एसिड और बेस रिएक्शन में जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जैसे लिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस क्या होता है स्टूडेंट्स, इसकी वीडियो हम पहले देख चुके हैं, और ये वीडियो मैं आपको आई बटन में ऊपर दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड या वीक बेस क्या होता है। तो स्टूडेंट, pH 7 जो है, एसिड और बेस जब रिएक्शन करेंगे, साल्ट बनाएंगे, तो हमेशा ही जो है इसका pH जो है 7 नहीं होगा। तो इसके बेसिस पे, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब रिएक्शन करते हैं, तो इस रिएक्शन के आधार पर दे आर डिवाइडेड इन 3 टाइप्स ऑफ salts: acidic salt, basic salt, and neutral salt. When strong acid and weak base, स्टूडेंट्स यहाँ आप ध्यान देंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और बेस जो है वीक लिया है, तो ऐसे में जब साल्ट जो बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के रिएक्शन से जब साल्ट बनेगा, तो इसका pH जो है लेस देन 7 होता है। लेस देन 7 जो है इसका pH होगा, तो इसका लेस देन pH जो है 7 होगा, तो ये एसिडिक साल्ट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल NH4Cl, यानी आपका जो है अमोनियम क्लोराइड जो होगा NH4OH प्लस HCl के रिएक्शन से बनेगा, तो NH4OH जो है आपका जो है वीक बेस है, ये आपका वीक बेस हो गया, और HCl आपका जो है ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जब रिएक्शन होगा, जो साल्ट बनेगा, जैसे यहाँ पे NH4Cl बन रहा है, तो NH4Cl जो है आपका एसिडिक साल्ट कहलाएगा। द नेक्स्ट वन इज बेसिक साल्ट। व्हेन बेसिक साल्ट किसको कहेंगे स्टूडेंट? ठीक इसका उल्टा है, यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था, यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के रिएक्शन से अगर जो है क्या बनता है, साल्ट बनता है, तो स्टूडेंट इस साल्ट का जो pH होगा ये मोर देन 7 होगा। फॉर एग्जांपल CaCO3, CH3COONA। स्टूडेंट, ये वाला रिएक्शन जो होगा CH3COH, ये एसिटिक एसिड है जो कि वीक एसिड है, और बेस जो होगा NaOH होगा, और देन ये बनाएंगे CH3COONA। तो स्टूडेंट, ये जो साल्ट बनेगा ये बेसिक साल्ट होगा। क्यों होगा बेसिक साल्ट? क्योंकि NaOH जो है ये क्या है स्टूडेंट, ये है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, और CH3COOH क्या है आपका, ये है आपका वीक एसिड, और इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड।
ऐसे ही स्टूडेंट जो न्यूट्रल जो साल्ट होंगे जिसका एग्जैक्ट पीएच वैल्यू जो है 7 होगा, तो कैसे होगा कि जब रिएक्शन होगा इन रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर जो है स्टूडेंट ये रिएक्शन हो सकता है वीक एसिड प्लस वीक बेस में जब रिएक्शन होगा तो न्यूट्रल साल्ट बनता है, फॉर एग्जांपल NaCl and Na2SO4। स्टूडेंट कॉमन साल्ट की अगर बात करें तो कॉमन साल्ट हमको पता चल चुका है कि कॉमन साल्ट जो है हमारा वो है NaCl को हम जो है कॉमन साल्ट के नाम से जानते हैं, और इसी को अब हमें पढ़ना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम जो है आगे पढ़ेंगे केमिकल फ्रॉम द कॉमन साल्ट। तो सोडियम क्लोराइड जो है कॉमन साल्ट के नाम से जाना जाता है। इट इज derived फ्रॉम सी वाटर, रॉक साल्ट, rock salt and mine like coal is brown colored and crystalline in shape। प्रिपरेशन इसका कैसा होता है? सोडियम क्लोराइड इज obtained by mining the deposits and brine solution। ब्राइन सॉल्यूशन स्टूडेंट्स NaCl का ही, जब NaCl को सोडियम क्लोराइड को जो है वाटर के साथ मिलाया जाता है या मिक्स होता है तो उसको ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। इज obtained by पासिंग वाटर इनटू द डिपॉजिट्स। ये ब्राइन सॉल्यूशन और ब्राइन जो है अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। Hence the salt get dissolved when the solution is pumped out। तो इसको जो है ब्राइन सॉल्यूशन के रूप में जो है डिपॉजिट किया जाता है, देन पम्प्ड आउट किया जाता है। या फिर नेक्स्ट जो मेथड है एवोपरेशन ऑफ सी वाटर इज वन ऑफ द मेजर प्रोसेसेस यूजिंग टू ऑब्टेन साल्ट। सी वाटर को या सी शोर पे जो है सी बेड्स बना करके उसमें जो है सी वाटर को, when sea water fill these sea beds and sun heat evaporate the water content and the salt is obtained as a residue and these residue then filtered out। क्यों इसको फिल्टर्ड किया जाता है? क्योंकि जो क्रिस्टल होते हैं कंसिस्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, इसमें काफ़ी इम्प्योरिटीज होती हैं, काफ़ी जो है अदर साल्ट्स भी जो है इसमें मिक्स होते हैं, जैसे कैल्शियम सल्फेट हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, और इन साल्ट्स का जो है टेस्ट जो है बड़ा अजीब सा होता है। प्योर क्रिस्टल आर obtained by dissolving the salt with little water and filtering the solution। स्टूडेंट्स कॉमन साल्ट के यूजेज क्या होते हैं? कॉमन साल्ट इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर मेनी मटेरियल्स ऑफ डेली यूज। जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, स्टूडेंट जो है आपका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ये इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं जो कि डेली यूज से रिलेटेड जो है मटेरियल इनसे तैयार किया जाता है। स्टूडेंट जो है अभी हम जो है आगे डिस्कस करने वाले हैं केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। तो स्टूडेंट जो है आपको इसमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो इसका जो है, एक तो आपको ध्यान रखना है इसका केमिकल नेम, देन आपको ध्यान में रखना है इसका कॉमन नेम एंड लेबोरेटरी प्रिपरेशन एंड यूजेज। तो स्टूडेंट सेकंड यूज क्या है इसका? यूज्ड इन आवर फूड एज ए प्रिजर्वेटिव एंड प्रोवाइड्स फ्लेवर टू फूड। ये तो सभी लोग जानते हैं। और यूजेज इन इंडस्ट्री लाइक जो पेपर इंडस्ट्री हो गया आपका, पेपर इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री, काफ़ी जगह जो है इसका यूज होता है। तो स्टूडेंट जो केमिकल फ्रॉम साल्ट है उसमें जो है पहला जो केमिकल है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और इसका कॉमन नेम हो गया कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट लेबोरेटरी प्रिपरेशन हो जाएगा 2NaCl। देखो 2NaCl ये ब्राइन है, अभी हम डिस्कस करेंगे, प्लस 2H2 इसके साथ वाटर मिला करके 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस जो है हमको मिलती है। and this process or this preparation or this reaction is also known as chlor-alkali process। क्यों इसको कहा जाता है क्लोर-एल्कली प्रोसेस? क्योंकि स्टूडेंट जो है एक ही रिएक्शन में हमें जो है क्लोरीन, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है मटेरियल है, केमिकल है,
जो कि काफ़ी यूज आता है। एक तो हमें ये मिल रहा है इस वाली रिएक्शन से, और देन स्टूडेंट हमें मिल रहा है कास्टिक सोडा NaOH, जिसको कि जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कह रहे हैं। तो ये आपका जो है एल्कली हो गया, एंड ये हो गया आपका क्लोरीन। देन इसको कहा जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसको लैब में और जो है सोप और पेपर में इसको बनाने सोप और पेपर बनाने में इसका यूज होता है। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे बेराइन की। ब्राइन स्टूडेंट जो NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, अगर हम इसको वाटर के साथ इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस अगर करवाएं तो स्टूडेंट जो है इसमें एनोड और कैथोड पे हमें क्या मिलने वाला है, एट कैथोड एट एनोड। तो स्टूडेंट कैथोड पे हमें जो है हाइड्रोजन गैस मिलेगी, एनोड पे हमें क्लोरीन यानी आपकी जो है Cl2 गैस मिलेगी, और देन प्रोड्यूस होगा NaOH। ये 3 प्रोडक्ट हैं जो कि हमें एज ए प्रोडक्ट जो है इस रिएक्शन से मिल रहे हैं। स्टूडेंट जो हाइड्रोजन है ये जो हाइड्रोजन का यूज है स्टूडेंट्स, ये जो है एज ए फ्यूल जो है इस्तेमाल होता है, और इसको जो है एज ए फर्टिलाइजर भी जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका यूज जो है किसमें होगा, एज ए फ्यूल और फर्टिलाइजर बनाने में इसका यूज होता है। और आपका जो है जो क्लोरीन है ये जो है वाटर ट्रीटमेंट या क्लोरिनेशन जो होता है उसमें ये यूज होता है। देन PVC बनाने में जो पाइप्स वगैरह होते हैं, और CFC इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स पेस्टिसाइड भी बनाने के लिए काम आता है। और NaOH आपका जो है डिटर्जेंट बनाने के काम आएगा, या फिर ये आएगा पेपर इंडस्ट्री में, या फिर जो है फाइबर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। तो स्टूडेंट जो H2 और प्लस Cl2 एनोड और कैथोड पे है स्टूडेंट, ये जो है HCl भी बना सकता है। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है ये आपका ये ब्राइन रिएक्शन जो है इसको कहेंगे NaCl का जो है क्या कराएंगे स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस को जो है ब्राइन कहा जाता है जब इसको जो है मिक्स किया जाता है वाटर के साथ। नेक्स्ट जो केमिकल है स्टूडेंट हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा CaOCl2। इसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2। स्टूडेंट ये रिएक्शन से पहले हम जो है यहाँ पे अगर हम पढ़ रहे हैं केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट, तो इन दिस रिएक्शन NaCl इज नॉट मेंशन्ड हियर। तो इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, मेंशन नहीं है तो पहले वाला जो रिएक्शन है हमारा, ये वाला रिएक्शन NaCl प्लस 2H2O 2NaCl जो पहला वाला रिएक्शन है जो अभी हमने पढ़ा, तो हम दोबारा इसको लिख लेंगे NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तो स्टूडेंट जो है यहाँ पे जो है ये वाला जो Cl2 है ये हम यूज कर लेंगे, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो आप लोग जानते ही हैं, ये आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको जो है वाटर में जब मिक्स करते हैं तो ये बना लेता है CaOH का होल ट्वाइस। ये यहाँ से ले लेंगे, देन रिएक्शन होगी CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या होता है, इट इज यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इट इज यूज्ड एज ए disinfectant to make water free from germs, used as oxidizing agent and chlorinating agent। तो ये आपका जो है ब्लीचिंग पाउडर का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट केमिकल है स्टूडेंट वो है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो कॉमन नेम है उसको कहते हैं बेकिंग सोडा। तो इसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन
स्टूडेंट ये वाला रिएक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करेंगे, NH3 प्लस CO2 प्लस H2O प्लस NaCl, NaCl यहाँ मेंशन है, और ये बनाएंगे NaHCO3 यानी कॉमन साल्ट ही बनाएंगे। साथ में स्टूडेंट जो है अमोनियम क्लोराइड भी साल्ट बनेगा। तो स्टूडेंट बेकिंग सोडा का यूज क्या है, प्रोड्यूस्ड काउज टू राइस, जो डो होता है केक और पेस्ट्री का, उसको जो है हेल्प करता है राइज में, और जब ये राइजेस हो जाता है तो ये देन स्पंजी हो जाता है। तो इट विल मेक केक एंड पेस्ट्रीज स्पंजी। स्टूडेंट नेक्स्ट यूज है इसका, यूज्ड एज इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड फॉर प्रिपेयरिंग बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और जो है माइल्ड ईडेबल एसिड मिला करके बेकिंग सोडा इससे जो है इस एज ए बेकिंग सोडा इसको यूज कर सकते हैं, और सोडा एसिड एक्सटिग्वेंसर के रूप में इसको यूज करते हैं। तो स्टूडेंट जो पहला यूज था इसका, ये जो है कैसे जो है डो को जो है स्पंजी बनाता है। स्टूडेंट जब केक और पेस्ट्री या कोई भी बेकरी आइटम में जो है इसको जब डाला जाता है तो देन जो है हीट जो है दी जाती है, तो इसमें जो है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2 जो है प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट जो डो होता है इस पे CO2 जो गैस होती है स्टूडेंट, वो जो है स्केप होती है। जहाँ जहाँ से CO2 गैस स्केप होगी स्टूडेंट, ये क्या करता है, इसमें छोटे छोटे होल जो है बनाता हुआ जाता है, और यही इन्हीं होल्स के कारण जो केक एंड पेस्ट्रीज होते हैं वो क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, स्पंजी हो जाते हैं। नेक्स्ट जो केमिकल है स्टूडेंट वो है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, या फिर आप इसको रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट कह सकते हैं। सिंपल सोडियम कार्बोनेट नहीं है स्टूडेंट, और इसका जो कॉमन नेम है वाशिंग सोडा। स्टूडेंट तो इसके लिए जो है हम पहले वाला जो है रिएक्शन लिखेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट जो है इसको लिख सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला जो है ये रिएक्शन लिख लेते हैं। इससे पहले जो है ये वाला रिएक्शन लिखना जरूरी है, क्योंकि इसमें NaCl मेंशन है। तो NH3 प्लस CO2 प्लस H2O प्लस NaCl, तो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि अभी जो है बेकिंग सोडा का लेबोरेटरी प्रिपरेशन, ये आपका क्या हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा प्लस NH4Cl। देन स्टूडेंट जब जो है अभी हमने जो जब हम स्पंजी ये डो को स्पंजी वाला जो पढ़ रहे थे, तो इसमें CO2 गैस निकल रही थी, तो यही वाला जो वो रिएक्शन है कि इसको हीट करेंगे और देन प्रोड्यूस होता है Na2CO3 CO2 एंड H2O। स्टूडेंट यहाँ से शुरू होती है लेबोरेटरी प्रिपरेशन। ये जो Na2CO3 है इसको रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। रिक्रिस्टलाइजेशन मीन्स इसके साथ जो है ए सर्टेन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है एडेड टू Na2CO3, वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है, देन ये बनेगा Na2CO3 into 10H2, जो कहलाता है हमारा वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा जो है इसको कहेंगे। स्टूडेंट इसके यूजेज क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरिक्स, ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, या फिर जो है वॉशिंग पाउडर के रूप में भी इसको यूज किया जाता है, और मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एंड सीमेंट जो है इसको यूज किया जाता है। स्टूडेंट इससे कुछ जो है रिलेटेड जो टर्म है अभी हमने इसमें पढ़ा था रिक्रिस्टलाइजेशन, तो यही टर्म्स जो है थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो टर्म है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसको कहेंगे, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड टू क्रिस्टलाइन साल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। स्टूडेंट कोई भी साल्ट है जितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के उसके साथ बॉन्डेड होते हैं उनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। CuSO4 5H2O, इसमें जो है 5 मॉलिक्यूल हैं किसके, H2O के, तो इसको जो है जो 5 मॉलिक्यूल हैं ये इसके साथ बॉन्डेड है एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देन स्टूडेंट हाइड्रेटेड साल्ट। हाइड्रेटेड साल्ट किसको कहेंगे, दो साल्ट्स विच कंटेन फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। कुछ कुछ साल्ट ऐसे होते हैं स्टूडेंट
जिनमें जो है फिक्स, या तो इसको जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही कहा जा सकता है, लेकिन अंतर केवल क्या है, इसमें फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको कि हाइड्रेटेड साल्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, these examples contain a fixed number of water molecules and they make a unique salt itself. CuSO4 into 5H2O, FeSO4 into 7H2O, Na2CO3 10H2O। स्टूडेंट ये आपका जो है वॉशिंग सोडा है और इसमें जो है इट है फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर जो है 10H2O की जगह अगर जो है 8H2 हो जाएगा तो पूरा प्रोडक्ट जो है चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हाइड्रेटेड साल्ट जो होते हैं इट हैज़ द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। CaSO4 2H2O और आपका एक एग्जांपल है CuSO4 इंटू 2H2O। ये आपका जो है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देन जो है इसको ये जो हाइड्रेटेड कंडीशन में होगा ये POP होगा और एनहाइड्रस जब होगा तो ये जिप्सम कहलाता है। द नेक्स्ट टर्म इज एनहाइड्रस साल्ट, क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड साल्ट व्हेन हीटेड। स्टूडेंट ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है या फिर हाइड्रेटेड साल्ट है, अगर इसको हीट किया जाए स्टूडेंट तो क्या होता है कि दे लॉस देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये हीट करके क्या करते हैं, लॉस ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, वाटर क्रिस्टलाइजेशन को लॉस कर लेते हैं। वाटर क्रिस्टलाइजेशन जब लॉस हो जाता है तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है और बिकम एमॉर्फस। एमॉर्फस मीन्स पाउडरी। फॉर एग्जाम्पल CuSO4 इंटू 5H2, अगर इसको हीट किया जाए तो स्टूडेंट ये पहले जो है ब्लू कलर का था, देन अगर इसको जो है हीट किया जाए तो CuSO4 और 5H2O जो इसके वाटर मॉलिक्यूल हैं ये इससे डीएसोसिएट हो जाते हैं, देन इसका कलर जो है वाइट हो जाता है। तो इसको आप कहेंगे एनहाइड्रस साल्ट। तो इसी पे बेस हमारा जो है फिफ्थ जो केमिकल है स्टूडेंट वो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम। ये जो जिप्सम है इसको हीट करके CuSO4 इंटू 2H2O, ये जो जिप्सम है इसको जो है हीट किया जाता है 373 केल्विन तक और देन ये बना देता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो स्टूडेंट जो है जिप्सम CuSO4 इसको जो है क्या करेंगे, हीट करेंगे 373 डिग्री केल्विन पे और देन ये जो है CuSO4 इंटू हाफ H2O, फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लस 3/2 H2O। स्टूडेंट एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है स्टूडेंट वो होता है 2CuSO4 इंटू H2O, लेकिन इस रिएक्शन में स्टूडेंट क्या होता है कि इट शेयर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ऐसा क्यों है, तो इसका स्टूडेंट जो 3/4 पार्ट है यानी 3/2 है ये H2O डीएसोसिएट हो जाता है। स्टूडेंट यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्यों शेयर कर रहा है, क्यों कंबाइन है इसके साथ, बल्कि इसका फॉर्मूला है 2CuSO4 इंटू H2O। स्टूडेंट यहाँ पे जो है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के जो मॉलिक्यूल हैं वो 2 हैं, लेकिन इस रिएक्शन में कॉपर मॉलिक्यूल का, कॉपर सल्फेट जो साल्ट है उसका एक ही मॉलिक्यूल है, इसलिए जो है एक CuSO4 शेयर करेगा हाफ H2O। नेक्स्ट जो CuSO4 होगा वो शेयर करेगा हाफ H2O और देन ये हो जाता है 2CuSO4 इंटू H2O। तो इसीलिए यहाँ पे क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है CuSO4 का, इसीलिए जो है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को शेयर करते हैं। स्टूडेंट अगर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ वाटर को मिक्स किया जाए तो फिर से जो है ये जो है अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है दोबारा से पा करके जिप्सम जो है बना लेता है और इट बिकम ए हार्ड सॉलिड मास। तो ठीक रिवर्स जो है ये रिएक्शन होगा,
CuSO4 into half H2O plus 3/2 H2O, देन ये बनाएगा फिर जिप्सम। इसका जो यूज होगा, मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल्स, स्मूथनिंग ऑफ सरफेस एंड प्लास्टर ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन। तो स्टूडेंट ये इसके यूजेज हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।